And now we will proceed to the next session, where I would like to invite colleague Dr. Vivek Singh in order to give us the first presentation on early childhood development, inclusive ECD, which is one of the topics that we are focusing on this time. Dr. Vivek, please. And his PPT, if you can line up, Gagan. Good morning, everyone. ये थोड़ा सा मिस हो गया. I thought कि अब टी ब्रेक होने वाला है. But anyways, so good morning, everyone, and my greetings to all the seniors from the radio industry and our own colleague, Chief of Communications, Zafreen, colleagues from Delhi, the Mumbai office. I see Raji here, who's the CFO. But most of all, I want to thank the CAP team. There are very few occasions, and I'm looking at some of my friends, I had met some of you in Mumbai, where I see so many celebrities in one room. And I'm a radio listener, so मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, तो मैं रेडियो सुनने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ एक जगह, सो ग्रीटिंग्स टू यू ऑल एज वेल. ये थोड़ा क्रेडिट आपको लेना चाहिए. And Omar reminds me I am putting this Gamsha from Assam. So we're going to talk of a topic. I'll come to that, but before that, let me talk of the diversity in this country. तो मैंने कुछ आप लोगों से ही सीख के एक शुरू किया है कि एटलीस्ट एक मंथ तक मैं किसी स्टेट में जाऊंगा तो वहाँ के कल्चर का कुछ अपने साथ कैरी करूँगा. ठीक है. तो मैं गुवाहाटी में था लास्ट वीक, तो आई थिंक 15 दिन और तक मैं इसको सपोर्ट करने वाला हूँ. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट टुडे, बट ऑल्सो द डाइवर्सिटी ऑफ दिस नेशन. एंड next I'm going to, I think, steal the stole from Omar, if he allows, and try to visit Kashmir. And I was in Patna, Shashi, day before yesterday, and maybe next could be I sport that thing from Bihar. So can I have my presentation, please? It's on the screen, and how do I maneuver this? And Bhavna can ensure if it is the latest version. So we are going to talk about a topic, early childhood development. So let's come to the diversity thing. मैंने ये diversity वाली बात क्यों बोली? So today ये इतना बड़ा आपका group है that can do so much for children. So let's see what we can understand about this topic and what is the purpose. I think one goal of this session today and whatever we discuss about early childhood development is putting children at the center of sustainable development goals. कि हम अगर अपनी दुनिया ह्यूमैनिटी की उन्नति के लिए 2030 तक के कुछ गोल सेट कर रहे हैं, पहले 15 तक के लिए सेट किए थे, तो कैन वी पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ इट, जिनके लिए ये फ्यूचर है, राइट? एंड वी सी सो मच हैपनिंग. क्लाइमेट की बात हो रही है, कोविड हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. कुछ देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इजीली मीडिया में आ जाते हैं. पैलेस्टाइन, गाज़ा की जो आज हालत है और गाज़ा में जो हो रहा है, और कुछ जगहों के नहीं भी आ पाते हैं. कॉन्गो में जो हो रहा है, सूडान में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है. अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई अब गाज़ा में शुरू हो गया कि आपकी नज़र हमसे चली गई. तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो इतने हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट होगा, हमारे आने वाले दिनों में जो बच्चे बाय द टाइम दे टर्न 71, अ चाइल्ड हु इज बोर्न टुडे, वो 4 डिग्री टेम्परेचर राइज देख लेंगे अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. और हम 1.5 डिग्री तक लिमिट करने की बात कर रहे हैं 2030 तक. बट हम अपने उन बच्चों का फ्यूचर जो उनको बिलोंग करता है, आई थिंक हमको एक फंडामेंटल चीज सोचनी पड़ेगी कि हाउ कैन वी पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड दैट इज़ व्हाट वील ट्राई एंड सी कि हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट उस पर्सपेक्टिव में कैसे समझें. बट वाई आई टोल्ड अबाउट डाइवर्सिटी, सो नाउ लेट मी कम टू दिस.
if some of you may have paid attention to the Honorable Prime Minister, some of the good things that I try to also see from there, so no political affiliations though, he keeps telling about ये जो मन की बात रेडियो में आती है हर month he tries, and I like that approach कि आप रेडियो को माध्यम यूज करके कैसे जन जन तक पहुंच सकते हैं. So the Prime Minister keeps saying of three things: democracy in India, the vibrant democracy, the diversity of our nation. इतने मतलब ये कॉन्टिनेंट है, इतने सारे राज्य, इतनी सारी जातियां, प्रजातियां, धर्म, जात, जो भी आप बोलिए, एंड उस डाइवर्सिटी से हमको जो सीखना है. एंड द लास्ट थिंग इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफी. नाउ if these three are important and if we have to make good of our demography, हमारे बच्चे, हमारे यूथ, हमारी यंग जनरेशन, तो हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि उस डेमोग्राफी का डिविडेंड मिलने लायक उनका डेवलपमेंट हो. So that is the context of investing in children and early childhood development. कि आज मैं और आप इस रूम में शायद इसलिए बैठे हैं कि आपको अगर लगता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में थोड़ी बहुत सफलता, एस्पिरेशंस और भी होंगे, बट इफ यू थिंक यू आर सक्सेसफुल अमंग द पीपल हु आर आउट देयर, तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने, हमारे आसपास के सोशल इन्वायरमेंट ने, हमारे टीचरों ने और पूरे के पूरे समाज ने हमारे ऊपर शायद बेहतर इन्वेस्टमेंट किया है एज कंपेयर टू बहुत सारे वो बच्चे जो जिस दिन पैदा हुए थे शायद हमारे और आपके बराबर थे, बट आज वो यहाँ तक नहीं हैं क्योंकि शायद उनको वो अर्ली चाइल्डहुड में उस तरह का डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. जो जिस दिन वो पैदा थे आई थिंक सब समान थे, और आज कुछ कहीं हैं कुछ कहीं हैं. दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन द इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन अर्ली ऑन. और अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे तो देर आर 10 out of 17 goals which have a direct bearing for early childhood development and the vice versa. कि जब तक आप बच्चों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये 10 गोल्स आप 1 to 6, फिर 8 and 16 and 10 and 11, ये 10 गोल्स पूरी तरह से कभी रियलाइज नहीं कर पाएंगे. And then there are many studies that have shown the return on investment. जब आप किसी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करते हैं, नॉट जस्ट द लॉन्गेविटी, बट वो कितना बोथ फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव की अपने आप को कितना हेल्दी और ट्रांसफॉर्मेटिव अपनी लाइफ को बना पाता है, एंड फ्रॉम अ यूटिलिटेरियन कि कितना वो कंट्री के दिस कैपिटल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाता है, कि वो खुद अर्न करता है कि नहीं, औरों को जॉब दे पाता है कि नहीं. तो इसलिए जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना हमको रिटर्न मिलता है. देर आर मेनी स्टडीज अराउंड दिस एंड दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस. एक और फंडामेंटल चीज जो हम सब समझ सकते हैं इजीली, जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है बॉडी का, ब्रेन का जो ग्रोथ है वो अर्ली ईयर्स में, इफ यू सी बाय द टाइम द चाइल्ड इज 4 to 6 years, कितना ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका है? Can somebody read that out for me? 90% of your brain is developed by the time you are what age? उसके बाद आप जो भी हैमर करोगे वो कितना परसेंट है? आपके साइको सोशल आचार व्यवहार में फर्क पड़ेगा, लेकिन जो आपका कोर ब्रेन का साइज है और जो उसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं वो 4 से 6 साल में हो चुके हैं. मतलब अडोल्फ हिटलर के अंदर जरूर उस 4 से 6 साल में कुछ ऐसा हुआ होगा, या बहुत सारे लोग जो आज की दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, गाजा में हो या और कहीं हो, इजराइल में जो हुआ हो, बट कहीं ना कहीं इनके साथ भी कुछ, इन बच्चों के साथ जो बाद में इतने अलग तरह से बिहेव करते हैं. 90% ऑफ योर ब्रेन इज डेवलप्ड बाय दिस एज, एंड दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. और ये एक MRI इमेज का रिप्रेजेंटेशन है कि आप अगर देखिए एक बच्चे का ब्रेन जिसको बहुत स्टिमुलस मिला है, सिंपली पुट ये वाला राइट साइड में, और लेफ्ट वाले को उतना ज़्यादा स्टिमुलस नहीं मिला है अगर 3 साल तक, क्योंकि न्यूरॉन्स 1 मिलियन कनेक्शंस बनाते हैं 1 मिनट में 3 साल तक. जैसे ही बच्चा बाहर आता है और जब अंदर रहता है वूम में, तब कंसेप्शन से लेके 3 साल तक
न्यूरॉन्स सीखते रहते हैं, और वो इन सारे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हम बात करेंगे। इन सारे पीरियड्स में 4 से 6 साल तक न्यूरॉन्स अपना मैक्सिमम जो बेस एनाटमी है वो बना चुके होते हैं, और ये स्कैन्स हैं वो दिखाते हैं। देखिए 3 साल में अगर नॉर्मल बच्चे का ब्रेन कितना डेंस है, और ये जो ऑपुलेंट एरियाज हैं, जो राइट साइड में एक एक्सट्रीमली निग्लेक्टेड बच्चा है उसका ब्रेन का अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, और अगर आप स्कैन्स देखेंगे तो उधर ये ब्रेन पूरी तरह से फुल है, और ये ब्रेन किस तरह से एक निग्लेक्टेड बच्चे का ब्रेन है जो इस तरह से, जो बाद में वो कभी गेन नहीं हो सकता। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, जब आप अपने आप को साल भर इस पे कुछ चलाएंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि 4 to 6 ईयर्स तक बच्चे में 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। एक सेकेंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आती है लाइफ में, जब आपके साइको सोशल और बाकी की चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, वो एडोलेसेंट में है। तो आज वो चर्चा का विषय नहीं है, बट अगर हम लाइफ कोर्स अप्रोच से देखेंगे तो 2 एज ग्रुप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जहां इन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी को, अगर आपको अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो पीसफुल हो, एक दूसरे की कदर करती हो, ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हो, इस तरह की सोसाइटी बनानी है, तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज आप मिस नहीं कर सकते। एक अर्ली चाइल्डहुड में, और दूसरा यूथ्स के साथ, एडोलेसेंट्स, कि मतलब इस राह पे जाना है कि उस राह पे जाना है। वो एडोलेसेंट फिर से एक विंडो देता है, बहुत थिन लाइन होती है कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर गया तो आई कैन गो अस्ट्रे, बहुतों के लिए तकलीफ होगी, अपने लिए होगी। राइट साइड में गया तो देन सपोज इफ आई रियलाइज कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से और कुछ अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने से, कोलैबोरेटिवली सोसाइटी का हिस्सा बनने से, यू कैन लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू योर नेशन। फिर मेरे को पता है कि हम ग्रुप वर्क करेंगे और आप साल भर इसके ऊपर और अपने आप को इन्फॉर्म करोगे, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही फंडामेंटल है। एक नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क बनाया है WHO और यूनिसेफ और कुछ एजेंसीज ने मिलके, कि 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में हम एक्टिविटीज को अगर देखें फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के अर्ली डेज में, जब वो अपनी मदर के वूम में रहते हैं, तब से लेके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक सिंपलिस्टिक व्यू है 1000 डेज, अगर आपने सुना होगा कभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है 1000 डेज प्रेगनेंसी और 2 साल तक का बच्चा। फिर कई जगह 3 साल देखेंगे, कई जगह 6 साल आप देखेंगे, बट सब एक ही बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। और इसमें क्या होना चाहिए, तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं, और ये इसका कुछ इनेबलिंग एनवायरनमेंट है कि केयर गिवर्स की क्या कैपेबिलिटीज हैं, कम्युनिटीज का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सर्विसेज और इनेबलिंग पॉलिसीज चाहिए, कि अगर माताओं को 6 महीने से 9 महीने की मटर्निटी लीव दी जाए, फादर्स को भी दी जाए, और वो कभी भी ले सकते हैं, तो इस तरह का पॉलिसी इन्वायरमेंट है कि नहीं है। तो जस्ट एन एग्जांपल, बट ये सारा इकोसिस्टम चाहिए। और वो जो 5 चीजें हैं इस नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क में, वो आप फंडामेंटली, अभी तक मैं भी लर्न कर रहा हूं, मेरे को भी रोज कुछ ना कुछ नया इस पे जाके अपने आप को इन्फॉर्म करना पड़ता है। बट 5 चीजें सिंपली अगर आप ख्याल करोगे, तो पहला है गुड हेल्थ, दूसरा है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, कि हमारा बच्चा इस ग्रोइंग पीरियड में सही न्यूट्रिशन पा रहा है कि नहीं। तीसरा है रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, सिर्फ प्रेजेंट रहना और फादर घर में एक दिन प्रेजेंट रह के लूडो खेल रहा है मोबाइल पे, कि एक्चुअली अपने, आई एम बीइंग एक्सट्रीमिस्ट, सॉरी हियर, कि एक्चुअली अपने बच्चे की तरफ देख के उससे आंख मिला के, उसको गोद में लेके टच करके, स्किन से लगा के, इस तरह का रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग कर पा रहा है फादर और मदर बोथ। आई शुडंट बी बायस्ड, जेंडर बायस्ड अबाउट फादर्स। तो रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग तीसरा है। और फिर उसके बाद है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि घर में, समाज में, इमीडिएट फैमिली में उस बच्चे को कितना सेफ और सिक्योर फील हो रहा है उस बच्चे को, कि मैं किसी से भी कल जाके लड़ लूंगा, राइट टाइप्स। या फिर अगर मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट नहीं है, तो हो सकता है मैं आगे रिश्ते बनाने में मेरे को मुश्किलें हों, मैं उतने अच्छे से लोगों पे ट्रस्ट ना करूं, ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट चीज़ है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्ली लर्निंग, कि बहुत सारी आप लोकल चीज़ों को यूज़ करके एक इकोनॉमिकली बहुत अच्छा वो ना भी हो, तो भी आप अर्ली लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दे सकते हैं, घर में दे सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में,
फिर हमारी जो आंगनवाड़ी और ये सारी सुविधाएं हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वहाँ पे। तो ये 5 कंपोनेंट्स नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क के हमें याद रखने हैं। और इनेबलिंग एनवायरनमेंट में रोल ऑफ द केयर गिवर्स, जो फ्रंट लाइन पे फंक्शनरीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो फैमिली वाले हैं, और उसके बाद कम्युनिटी का ओवरऑल क्या रोल होना चाहिए, एंड पॉलिसीज का नेशनल लेवल पे क्या रोल होना चाहिए। सेम थिंग हैज बीन रीएम्फसाइज्ड इन सो मेनी थिंग्स, और अगर हम इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आई एम श्योर वी विल गेट मोर टाइम व्हेन वी डू द ग्रुप वर्क एंड वी विल हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस। ये एक सीरीज आई थी लैंडसेट की ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट 2016-17 के आसपास, उसमें और भी डिटेल्स दिए हुए हैं कि मल्टी सेक्टोरल एक्शंस, कि इसमें सिर्फ स्वास्थ्य का, न्यूट्रिशन का रोल नहीं है, इसमें एजुकेशन का रोल है, इसमें WCD मिनिस्ट्री के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक फंक्शन है। शर्मिला हमको चाइल्ड प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगी। तो इन सब का रोल है, बाकी इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज का रोल है। तो मल्टी सेक्टोरल एक्शंस अक्रॉस द लाइफ कोर्स जो कि इंश्योर करें कि मदर्स हेल्दी हों, और अगर मदर्स हेल्दी होंगी तो वो हेल्दी बच्चों को बर्थ देंगी, एंड हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ना अगर मैं आपसे 2 आस्क मांगू, साल भर आप क्या कर सकते हो? तो जो बोलते हैं ना कि ये कैंपेन मोड, और वो कोविड के बाद से ये और जन आंदोलन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, लोगों ने उसको प्रैक्टिकली देखा कि आप जन आंदोलन किसको कहते हैं, राइट? मतलब जन आंदोलन जैसे कि देशों ने किया हो, चाहे उन्होंने अपनी आर्मी के थ्रू किया हो या फिर पीसफुल, कोई क्लेम करता है पीसफुली किया हो, कैसे किया हो। हमने आज तक सुना था हिस्ट्री में कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जन आंदोलन, बट कोविड के दौरान एक्चुअली हमने देख लिया, या बीच में कोई कहता है कि पॉलिटिकल चेंजेस के लिए जन आंदोलन, बट कोविड में हमने देख लिया कि कैसे जिससे हम खुद अफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे जन आंदोलन का एक रोल था, एंड वेयर होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच किसे कहते हैं। तो ये 100,000 डेज वाला, सॉरी, अगर आप एक जन आंदोलन चला सकते हैं ना, कि इतनी फंडामेंटल चीज़ें हैं। वो महाभारत में भी हमारे यहाँ है ना कि भाई गर्भ में उन्होंने इसको सीखा था, क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह को तोड़ना। एंड में वो स्टोरी एंड होने के पहले, एंड दैट इज सो एक्चुअली मेडिकली प्लॉजिबल, एकदम प्रूवन है कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। गर्भ संस्कार की जो हम बात करते हैं, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, चाहे वो हिंदूज का टेक्स्ट हो, मुस्लिम्स का हो, सिखों का हो, ईसाइयों का हो, हर एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि मदर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है अगर आपको एक हेल्दी बच्चा चाहिए, और उस मदर का ख्याल रखा जाए। आज की डेट में वर्किंग मदर्स हैं, उनके ऊपर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी इतने होते हैं, प्रेगनेंसी में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। आज अब लोगों को ख्याल आया है, तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ ईजी थिंग। आप मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास देख लीजिए, लेडीज़ को कितनी तकलीफ होती है। वो तो 9 महीने तक अपने को जब बच्चे से रखती हैं और उनको इतना सपोर्ट चाहिए। सो आई थिंक प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली सपोर्ट कर सकें, सोसाइटी सपोर्ट कर सकें, वो और उसके बाद का जो 2 साल का पीरियड है, इसके बारे में अगर हम कैंपेन चला सकें। और दूसरा एक बहुत सिंपल टूल है जो कि अंडर यूटिलाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, विच इज़ दी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ये भी एक गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट हमको बार बार आती रहती है, एंड आई एम श्योर ऑल इंडिया रेडियो विल बी लिसनिंग टू दिस मोर। ये वी वर स्पीकिंग टू नीति आयोग में डॉक्टर विनोद पॉल सर एंड अदर्स की कंट्री में अगर हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करें तो एक बहुत सिंपलिस्टिक टूल है जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है। ये मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड में 3 साल तक के बच्चों के क्या नॉर्मल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, ग्रीन में लिखा हुआ है। वो क्या साइंस हैं कि वो अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री से फैल्टर कर रहे हैं, वो लाल में दिखाया गया है। और आपको क्या एक्शंस करने चाहिए कि उनको वापस लाना, ये दिखाया गया। तो ये कार्ड इतना अंडर यूटिलाइज्ड है फील्ड में कि इसको लोग सिर्फ इम्यूनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कि अच्छा इम्यूनाइजेशन वाला कार्ड, आई वाज इन असम, आई वाज आस्किंग देयर, फिर हम पटना में पूछ रहे थे लोगों को, मेजॉरिटी आज भी लोगों को यही लगता है कि इस पर सिर्फ इम्यूनाइजेशन लिखा जाता है, जबकि ये बहुत ही सिंपल टूल है जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स यूज़ कर सकते हैं, फैमिलीज यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रॉम द प्रेगनेंसी, एंटीनेटल पीरियड से लेके बच्चे के 3 साल तक। तो इसके बारे में अगर आप जितना कैंपेन, और हम कैसे कैंपेन चला सकते हैं, ये दिन भर चर्चा कर सकते हैं। फिर नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क के बारे में बहुत सारे अगर आपके सवाल हैं तो ये स्पेसिफिक एक्शंस हैं। शर्मिला का
सेशन होगा. फिर आई सी आवर अदर कोलीग्स, डॉक्टर रूपा इज हियर फ्रॉम अ एनजीओ पार्टनर उम्मीद, एंड if I'm not wrong, Manisha also, who's a parent. तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के नर्चरिंग केयर फ्रेमवर्क के जो 5 कंपोनेंट्स हैं: गुड हेल्थ, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्ली लर्निंग. तो इसमें क्या क्या टैंजिबल एक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं. इसमें एक लास्ट पॉइंट में जो सबको हाईलाइट करना चाहूँगा, आज जाफरीन ने एक वर्ड यूज़ किया, इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट. सो इंक्लूसिविटी का मतलब है कि हम किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे उसकी कुछ स्पेशल नीड्स हो, डिसेबिलिटीज़ हो, तो भी उस बच्चे के बारे में जब हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम उस बच्चे की भी बात कर रहे हैं. हम सिर्फ नॉर्मल बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल बर्थ डिफेक्ट डे आता है 3 मार्च को. बहुत सारे बच्चों को पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रीट हो जाते हैं, बहुतों को प्रिवेंट किया जा सकता है, बट कुछ नहीं ट्रीट हो पाएंगे. तो ऐसा बच्चा आज की डेट में, इफ यू इमेजिन पैरा ओलंपिक्स, एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई एम फीलिंग सो बैड, ऑफ आवर आर्चर who got, can somebody tell me the name? I'm feeling, yes. So when I saw that image कि एक आर्चर अपने पांव से उस बो को टारगेट की तरफ देख के, एंड इफ यू लुक द कॉन्फिडेंस इन हर आईज और उस फेस पे, तो हर उस बच्चे को जो उस डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है वो नहीं मिल पाता जो उनको मिला होगा. एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी शुड अपलॉड द पेरेंट्स, यस, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी. और हम इंश्योर करें इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कि हम ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को और फ्रंटलाइन फंक्शनरीज को भी एम्पावर करें कि इनके अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, उनका भी ब्रेन 90% डेवलप हो जाएगा 4 to 9, और उनको किसी को बताना पड़ेगा कि भाई तुम तो यूनिक हो, तुमको तो एक्स्ट्रा चैलेंज आएगा लाइफ में, बट डोंट वरी. सो देन ओनली दैट चाइल्ड कैन गो एंड जंप इन द सी एंड स्विम. कि भाई मेरे लिम्स नहीं है, बट तो सो व्हाट, आई कैन स्टिल स्विम इन द सी. और नॉर्मल कितने सारे बच्चे सी में जंप करने से डरते हैं. तो आप ये सोचिए, जब आप ऐसे बच्चों को देखते हैं कि दे कैन गो टू द माउंटेन्स, तो अर्ली चाइल्डहुड में किसी न किसी ने उन बच्चों पे वो इन्वेस्टमेंट किया है. सो दैट इज द कंसेप्ट. क्योंकि ऐसे बच्चों की अगर आप फिगर्स देखें, दे आर लेस हैप्पी, दे आर लेस हेल्दी, स्टंटिंग ज़्यादा है इसमें, एंड आई थिंक दीज आर नो ब्रेनर्स, क्योंकि हम ऐसे बच्चों तक वो चीज़ें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं. 2 सिनारियोज ये बहुत जानना अपने कंट्री में ज़रूरी, कि एक तो बच्चे जो ऑलरेडी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं, एक बहुत सारे बच्चे लो बर्थ वेट के साथ अपने समय से पहले ही प्रसव के वो बाहर आ जा रहे हैं, प्री मैच्योरिटी जिसको कहते हैं. और अभी तो हमारे हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी ऐसे बच्चों को बचाने की बढ़ती जा रही है. बचा तो लिया आपने इस बच्चे को, बट उसका डेवलपमेंट में तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, बोथ इन द फैसिलिटीज. उसको जब न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं, फिर जब वो घर चला जाएगा तब उसके न्यूट्रिशन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है. अदरवाइज इन बच्चों को कल को आने वाले दिनों में डिसेबिलिटी का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है. इसलिए हमको डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, और जहां कुछ ना हो पाए ऐसे बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे हमको फोकस करना पड़ेगा. 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको ऐसे बच्चों पे फोकस करने के लिए भी. एक तो कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, आप यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं, आप सबको मालूम है कि मोस्ट वाइडली रेटिफाइड लीगल डॉक्यूमेंट, यूएस को छोड़ के सबने रेटिफाई कर दिया है. उसके बाद एक दूसरा था जो इंडिया ने 2007 में आई थिंक रेटिफाई किया था, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. इसमें कुछ ऐसे बच्चों के लिए राइट्स के बारे में लिखा हुआ है जिनको डिसेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी अगर आप गोल 10 और गोल 11 को देखेंगे तो उसमें बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है उनके बारे में लिखा हुआ है कि वी हैव टू. नाउ व्हाट इज यूनिसेफ्स डिसेबिलिटी इंक्लूजन पॉलिसी? उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है विच आई थॉट आई विल हाईलाइट इज that children with disability should be empowered and recognized to be their own best advocates. ऐसे बच्चों को इनकरेज करिए, उनको खुद का एडवोकेट बनाइए. मैं आपको एक एनडीटीवी का रीसेंट इवेंट बताता हूँ, एंड आई लव दैट सो मच. एक बोथ लोअर लिम्स नहीं थे, एक अपने स्पोर्ट्स पर्सन थे, एंड ही वॉज यूजिंग द वर्ड डिसेबिलिटी एंड समबडी फ्रॉम द ऑडियंस सेड डिसेबिलिटी. तो एक ओवर इंथुजियास्टिक एम्पैथेटिक अंकल खड़े हुए और उन्होंने बोला, ए डिसेबिलिटी नहीं बोलने का, स्पेशल एबिलिटी बोलने का. एंड दिस बॉय फ्रॉम द स्टेज सेज, सॉरी अंकल, डोंट गेट एक्साइटेड, डिसेबिलिटी बोलने का, बिकॉज
दैट इज द राइट लीगल वर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसेबिलिटी है, बट ये डिसेबिलिटी मेरे को अफेक्ट नहीं कर रही है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आई थिंक ये इंकरेजमेंट करना है हमें ऐसे बच्चों के साथ कि एम्पावर देम टू बी देयर ओन एडवोकेट्स एंड चैंपियंस। कि एक बच्चा आए यूनिसेफ ऑफिस में आए और बोले कि यार हमारी मीटिंग सारी ग्राउंड फ्लोर पे क्यों होती है, तुम्हारे यहाँ तो लिफ्ट भी नहीं है कि मैं थर्ड फ्लोर पे जाके तुम्हारे थर्ड फ्लोर वाले को मिलूं, और हमें यूनिसेफ ने अभी लिफ्ट इनॉग्रेट करनी पड़ी है हमको थोड़े दिन पहले। तो ऐसे बच्चों को खुद एडवोकेट्स बनाने का ये दीजिए। फिर इंक्लूड एंड सपोर्टेड इन कम्युनिटीज, दे आर इंक्लूडेड, दे आर मेन स्ट्रीम्ड इन ऑल आवर एक्शंस। ग्रोइंग अप इन एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट, उनको भी वैसा ही इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले जैसा नॉर्मल बच्चों को, एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम द फुल रेंज ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। उसमें कोई नॉर्मल एंड डिसेबिलिटी के बच्चों का अलग से ये ना हो, एक्सक्लूजन ना हो। सो दैट्स ऑल दैट वी मीन बाय इंक्लूसिव ईसीडी। यू ऑल्सो फोकस ऑन, एंड आई वुड एंड बाय सेइंग कि अगर आप कोई कैंपेन चला सकते हैं, so let's be that village for the child. It takes a village to raise a child. And do we all agree on this or not? हमारे गांव में लोग कहते हैं कि भाई आपको आज लगने लग गया कि किंडर गार्डन जाना पड़ेगा। पहले एक परिवार में 30 बच्चा रहता था, अब वो 30 बच्चे के लिए किंडर गार्डन की जरूरत नहीं होती, आज हमको किंडर गार्डन जाना पड़ता है। उसी तरह एक गांव में 30-40 बच्चे अगर रहते हैं, तो आई थिंक वी हैव टू प्ले अवर पार्ट to ensure that it takes a village to raise a child, and we give that child that village. And I also want to acknowledge, ये मेरे को डॉक्टर शैलजा सेन का एक यूनेस्को की वेबसाइट पे एक ये मिला कि if we are trying to be the village for that child, हम इन बच्चों को क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। If you go to UNESCO website, you'll also find this. हम उनको compassion के बारे में बता सकते हैं, कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बता सकते हैं, हाउ टू बी करेजियस इसके बारे में बता सकते हैं। और आजकल इतना इंफॉर्मेशन है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप क्रिटिकली कैसे थिंक करते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। एंड कोलैबोरेशन, कि सबका साथ लेके ही, आप अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो हाउ फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, कम्युनिटी में वो फीलिंग लाने के लिए कोलैबोरेशन। सो आई थिंक आई लाइक दिस, सो आई पिक दिस अप। It could be the other way. It could be the other way around, and you should read this. So, Dr. Shailaja Sen is saying that while it takes a village to raise a child, and also the vice versa. So, that's why I've given the reference also. आप UNESCO के इस पे जाके Google करिएगा. I like this, and so that's why I thought I'll pick this up. And last thing, एक pledge है, एक हमारे अपने document से मैंने उठाया कि that we should think of for early childhood development. Think of a society and systems where every unwanted maternal and child death is eliminated. Every pregnancy is wanted. So which means regardless of the boy or the girl, every pregnancy is wanted. And every birth is celebrated. Again, regardless of the boy or the girl, every birth is celebrated. And where women, babies and children survive, but more importantly, thrive, to be able to transform their health and human potential. Thank you very much. So I don't know what's the structure and format of this, but after this we have the tea break, right? Thank you. What's the plan now? Okay. So I think the discussions will continue throughout the day. We'll listen to more people also. But these are some pointers जहाँ पे हम self inquiry और करते रहेंगे on these topics. And I hand it over to Sonia.